ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسر دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن فیول کہاں سے بھروایا گیا اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ۔ اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے، لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بھیج رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا۔ اور آخر میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں، پھر میں کچھ باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں آج جس طرح کے 3 افراد کے نام عمران خان صاحب نے دیے، ایک شہباز شریف، ایک قاتل ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے میں جس کے ہاتھ خون سے رگے ہیں، رانا ثناءاللہ جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام اس کے اپنی جماعت نے لگایا تھا، وہ، اور تیسرا میجر جنرل فیصل، یہ 3 فوری طور پہ مستعفی ہو جائے۔ ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کل آپ نے اسد عمر کی پریس کانفرنس سنی اور مطالبہ آیا، یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستانی قوم کے ذہنوں میں سوال ہے، اگر ایک شخص شہباز گل پر بھی جس قسم کا تشدد ہوا، اعظم سواتی 75 سالہ شخص پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کے سامنے اس کے ساتھ جو ہوا، اور پھر ابھی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اگر ایک شخص کا نام آ رہے تو اس سے کس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے؟ ہماری تو آواز بند کی جاتی ہے، جو بھی بندہ یہاں پہ بولتا ہے کہتا ہے کہ رستے سے ہٹاؤ۔ یہ انسان تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گاجر مولی ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو۔ کوئی اپنی امن کی بات کرے، ایک گیم ایکسپوز کر دیں، مار دو۔ کوئی ارشد شریف شہید کے حوالے سے بات کرے، کہتے کہ مار دو۔ کوئی عمران خان کے قتل کے حوالے سے سوال اٹھائے، کہتے کہ مار دو۔ کتنوں کو مارو گے؟ 22 کروڑ کا ملک ہے، کتنوں کو مارو گے؟ تو اگر کوئی ادارے کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے
تو اس کو پوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے. اور میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں, پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ کل کا جو حملہ تھا, کیونکہ جو ویڈیوز تیار کر کے پھر من پسند صحافیوں سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, کسی سے اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے ٹویٹ کرتے ہوئے, تو اس طرح کر کے یہ بیانیوں کی جنگ نہیں ہے کہ آپ بیانیوں سے ان چیزوں کی توجہ ہٹا سکے. کل جس انداز سے فائرنگ ہوئی, فیصل جاوید کو جو گولی لگی, چٹا کو جو لگی, جو خان صاحب کے ساتھ ارد گرد تھے, خان صاحب کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی, اللہ نے بچا لیا. کل تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ 4-5 دن پاکستانی قوم شور مچائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حالات نارمل ہو جائیں گے. اس طرح نہیں ہے. اس وقت فیڈریشن کی وہ متحد کرنے کی ایک جماعت ہے, وہ تحریک انصاف ہے. اگر ہر صوبے میں کوئی پارٹی موجود ہے وہ تحریک انصاف ہے. اگر پختونخوا, پنجاب, بلوچستان, سندھ, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر میں کوئی جماعت موجود ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. 4 صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو اگر آپ ان کے لیڈر کو رستے سے ہٹاؤ گے تو آپ تو فیڈریشن کے دشمن ہو, آپ تو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اور میں تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, ہم نے پہلے آگاہ کیا تھا, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور آپ وہ کراس کر چکے ہو. اس وقت جو کارکنان کے جذبات ہے, آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا, انڈس ہائی وے بند کر دیا, پنڈی میں فیض آباد, آئی جی پی روڈ, یہ سارے بند ہو گئے. تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے, ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. احتجاج ہمارا جاری رہے گا, تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا. آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں, سوال سب سے لوں گا. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اس کے جوابات آنے چاہیے. ہمارے پاس جوابات بھی ہے. ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے. سوال بھی بہت ہے, شواہد بھی بہت ہے, دستاویز بھی بہت ہے. اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے, شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں, تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا, جتنے دستاویزات وہ پیش کرتے تھے. لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتا تھا. وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں, تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا. لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے. میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار, ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں. یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر. ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے, انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر. خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے, یہ چورن مت بیچے. اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتا ہے. تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کے تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے, اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا. اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی, جو ہیلی کاپٹر میں فیول, پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا, بند کمرے میں جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی, نیریٹو بنا دیا گیا. اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بصد احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا, کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے. اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں, ہمارے کارکنان, پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی, جو عالم اسلام کے ترجمان بنے, جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا,
جنہوں نے پاکستان کے غریب مزدور کسان پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی، اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے. میرے پاکستانیوں، ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں. ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے، انتشار سے منع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا. مراد صاحب، غداری کا چورن آپ نے بڑا زبردست جملہ کہا. یہ جو منصوبہ ہے، یہ منصوبہ پہلا نہیں، اس سے پہلے بھی منصوبے بنائے گئے ہیں. آج سے کچھ مہینے قبل آپ وفاقی وزیر تھے، اس طرح کے واقعات قبائلی اضلاع میں ہوئے تھے جو ابھی سوات میں ہو رہے ہیں. اس پر وہ سنداور علی وزیر بات کرتے تھے، آپ اس کو خود غدار کہتے تھے. تو کیا ابھی وہ غدار ہیں یا نہیں آپ کی نظر میں، یا آپ خود غدار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیونکہ ابھی تو وہی واقعات ہو رہے ہیں، آپ اس پہ بات کر رہے ہیں. اب اور جن اداروں کے وہ نام لیتے تھے، آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے جھگڑے کرتے تھے اسمبلی میں. آج کس کے خلاف جھگڑا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دو فرق ہے، اور ایک 18 سیکنڈ کا کلپ وہ چلا رہے ہیں اور آپ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. 2 منٹ کا کلپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں نے ایک واضح مثال دی تھی. ہمارے علاقوں میں 20 سال سے خیبر پختونخوا میں جنگ جاری تھی. پشاور یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر بازار میں ایک دن میں 100 سے زیادہ ہم نے لاشیں اٹھائی تھی. یاد ہوگا آپ سب کو. ہم نے ہر جمعے کی نماز کے وقت سب اپنے بچوں کے لیے دعا گو ہوتے تھے کہ پتہ نہیں مسجد سے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آپ سب اس بات کے گواہ ہیں. 20 سال بعد کیا 2018 سے 22 تک 21 تک ہمارے خیبر پختونخوا میں امن تھا کہ نہیں تھا؟ کیا سوات جو 2013 سے پہلے تھا اور آج کا سوات، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، سوات میں جو موٹر ویز بنے، سوات میں جو ٹورزم کا فروغ ملا، سوات میں جو یونیورسٹیز کا قیام ہوا، تو کیا سوات دہشت گردی کے بعد ٹیررزم سے ٹورزم پہ جانے لگا کہ نہیں جانے لگا؟ میں اس پہ پوری بات سنا کرے جی. میں بھائی، آپ نے سوال پوچھا، میری بات پوچھنا کرے. میں ان کو مثال دیتا تھا کہ آپ کے پاس 2 رستے ہیں، یا تو آپ بندوق اٹھائے اپنی ریاست کے خلاف، یا میرے راستے پہ چل کے اپنے وزیرستان کو سوات جیسا بنا دیں. تو جب میں پارلیمنٹ میں پہنچا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود تمام چیزوں کا مقابلہ کروں گا، لیکن اپنے لوگوں کے لیے سایہ بن کے. سر سورے بھائی جوڑے گا، سایہ بن کے. میں نے وہی کیا کہ اپنے لوگوں کو امن کی طرف لے کے گیا، خوشحالی کی طرف لے کے گیا، ترقی کی طرف لے کے گیا. اور یہی میرا مطالبہ تھا کہ جب ہو چکا تو اس کے بعد اگر میں وہاں پہ کر رہا ہوں، ان کے میڈیکل سٹوڈنٹس کے مسائل تھے، ان کے بازار میران شاہ کا مسئلہ تھا، وہ تمام مسائل میں نے خود حل کیے اور لوگ میرے پاس آئے. تو یہی میرا مطالبہ تھا کہ یار وہ مثال آپ کے سامنے ہے، وہی ماڈل آپ لے جائے وزیرستان میں امپلیمنٹ کر دیں، تاکہ وزیرستان کے لوگ بھی امن اور خوشحالی دیکھ سکے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ہی آگے کر دیں. تو لوگوں کو آگے کرنے کے میں نہ کل حق میں تھا نہ آج میں حق میں ہوں. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 مہینے میں جتنے پروٹیسٹ ہم نے کیے، اس کو ہم نے سیاسی فورم پہ استعمال نہیں کیا. امن کا سفید جھنڈا اٹھا کے تمام کو دعوت دی، سب کھڑے ہو گئے اور ایک ہی آواز تھی، امن، خوشحالی، ترقی. اس میں کسی کے حق اور کسی کی مخالفت میں نعرے نہیں تھے. لیکن پریس کانفرنس جو میں نے کی ہے اس ٹاپک پہ اگر ہم رہے تو میں نے جواب دے دیا جی. جو وہ کہہ رہا تھا وہی آپ کہہ رہے ہیں. ارشد شریف بھی یہی سے پشاور سے چلا گیا، کس نے رخصت کیا؟ پھر عمران خان کی ہیلیکاپٹر کریش لینڈ، ہیلیکاپٹر بھی آپ لوگوں کا اپنا ہی تھا. فیول کہاں سے بھرا جاتا ہے جی؟ فیول جہاں سے بھی وہ کیا تھا کہ میں جو ہے نا ایک جگہ سے فیول. سوال پوچھیے، اب میں جواب دیتا ہوں جی. یہی سوال کر رہا ہوں نا کہ فیول جب وہ کر رہا تھا، ہیلیکاپٹر آپ کا اپنا تھا. عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے، آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم نے باہر کہا تھا کہ وزیر آباد میں حملہ ہوگا، قاتلانہ حملہ ہوگا. آپ لوگوں کو پتا تھا پنجاب میں حکومت آپ کا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے. بالکل بہت اچھے سوال، بہت اچھے سوال کیا گیا تھا کہ دبئی سے کس نے نکالا تھا. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ 10 سے 22 تاریخ کے درمیان کون اعلیٰ حکام موجود تھے جو اتنے انفلوئنشل تھے کہ یہ حکومت کو پریشر دے سکے. اب آپ نے ہر چیز میری منہ سے سننی ہے. مراد کو یہ آگے کرنا ہے، امن چاہیے، مراد آگے ہو جائے، وہ بھگتے. ارشد شریف شہید کا مقدمہ لڑنا ہے، مراد شہید آگے ہو جائے.
یہاں پہ فلاں قاتلوں کو پکڑنا ہے، مراد سعید آگے ہو جائے، میں تو آگے ہوں، لیکن میں نے کمیشن اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی جواب دینے ہیں۔ سمپل جواب دے دیا، 10 اور 22 کے بیچ کون سے اعلیٰ حکام اتنے طاقتور یو اے ای میں موجود تھے؟ آپ کو ابھی جواب مل جائے گا، فورن آفس کے کسی بھی رپورٹر کو فون کر لیں۔ دوسرا سوال میں نے پوچھا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں فیول ایندھن کہاں سے بھروایا جاتا ہے، اور اس میں کیسے کہا گیا جو کریش لینڈنگ ہوئی وہ فیول کا مسئلہ ہے، غلط ڈلوایا گیا تھا اور کریش لینڈنگ ہوتی ہے۔ میرے سوال نہیں ہے، میرے سوالوں میں جوابات ہے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور تیسرا جو آپ نے کہا کہ پنجاب میں، یہی تو میرا سوال ہے کہ ایک بندہ فائرنگ کر کے اس کی ویڈیو 15 منٹ کے اندر ویڈیو بھی تیار ہوتی ہے، اس کے بعد اگر ہم کوئی بھی بات کرے کہتے کہ پیمرا کو نوٹس، ایئروائی بند، بول بند، فلاں چینل بند کر دو، مت چلاؤ، یہ اطلاع آتی ہے نا۔ لیکن ایک بندہ فائرنگ کر کے ابھی گرفتار ہوئے، 15 منٹ میں پورا نیریٹو بنا کے اسی واٹس ایپ گروپ، اسی نمبر سے، انہی لوگوں کی طرف سے میسیجز جاتے ہیں، بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جنہوں نے ارشد شریف جب شہید ہوا تو آدھے گھنٹے کے بعد وہی لوگ کال کر رہے تھے، میڈیا کو انسٹرکشن دے رہے تھے۔ میں تو جانتا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ تو چیف جسٹس صاحب بلائیں نا، تاکہ میں سامنے حاضر ہو جاؤں اور میں یہ تمام چیزیں رکھ دوں۔ میں اگر میڈیا کے سامنے اگر آپ پورا لائیو چلائے، 100% چلائے، میرے آواز کو بغیر میوٹ کیے گئے، میں آپ کو ابھی بتا دوں، لیکن میں کیوں ضائع کروں؟ آپ نے کہہ دیا کہ آپ مجھے یہ آگے کر رہے ہیں کہ میں ہر چیز کا جواب دوں، جب آپ نے خود اپنے آپ کو آگے کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حقائق آپ کے پتہ ہے، شواہد آپ کے پاس ہیں، آپ نے 3 مقامات میں محفوظ کیا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ارشد شریف مرحوم شہید جب وہ شہید کر دیے گئے، اس سے پہلے جب وہ پاکستان سے باہر، چلو پاکستان میں تھے تو وہ دباؤ میں تھے، پریشر میں تھے، وہ سچ اور جو سچائی تھے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ جب وہ پاکستان سے باہر گئے تھے، وہ ایک میڈیا کا ایک بندہ تھے، ان کی ایکسیس تھی سوشل میڈیا پہ، وہ اپنے ساتھ جو لوگوں کو تنگ کر رہے تھے وہ اپنے منہ اس نے کیوں نہیں وہ کیا کہ وہ سارے شواہد اس نے آپ کے پاس محفوظ کیے ہیں۔ دوسری بات، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر ملکی جو کہ گروہ کا سرغنہ جو گرفتار ہو گیا ہے نا، تو یہ آج آپ پہلی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی کوئی بندہ پکڑا گیا، یہ کون ہے، کہاں سے پکڑا گیا تھا، کس ایجنسی کی تحویل میں ہے، اور پھر ذرا بتا دیں کہ آپ کے خیال میں کون ہے جو ہائر کیا تھا اس بندے کو؟ افغانستان کا ایک شہری تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے، اس کے پاکستان میں روابط ہے، اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر میرا سوال ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے کہا کہ میڈیا چلا رہے تو ایئروائی نے جیسے آن ایئر کیا تو آواز بند کر دی گئی، بول کٹ ہو گیا، اور باقی بھی خیر خیریت ہے، جو پوری رپورٹ مجھے آ گئی ہے ساری، ٹھیک ہے جی۔ تو اور باقی تو خیر خیریت ہے نا، میں نے پورا جملہ یہ بولا۔ تو بات یہ کہ یار میرے دوست ہیں آپ سارے، میں آپ سے تو آپ کے بس میں تو نہیں ہے، آپ تو یہاں پہ آئے ہیں، آپ کا تو میرے اوپر احسان ہے، میں آپ سب کی قدر کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر چینل کی پالیسی ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک کرمنل کی ویڈیوز بنا کے نیریٹو بنایا جا سکتا ہے، ارشد شریف کو شہید کرنے کے 30 منٹ بعد میڈیا کو انسٹرکشن دی جا سکتی ہے، تو یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا، آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آ سکتے تھے، آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ تو آپ نے جو بات کی افغانستان سے تعلق ہے، وہ ایک گروہ کا سرغنہ ہے، اس کے پاکستان میں روابط ہے، پاکستان سے اس کو احکامات ملے تھے، وہ گرفتار ہو گیا، پھر اس کے بعد کون تھے جو اس کو اپنے حراست میں لانا چاہتے ہیں اور حوالگی کے لیے پریشر ڈال رہے تھے؟ میں تو یہ سوال پوچھا۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک نیریٹو بنایا گیا، ویڈیو بہت جلدی ریلیز کی گئی، صرف پنجاب میں تو جو چودھری پرویز الہی کی حکومت ہے، پنجاب پولیس کی وہاں ان کے انڈر ہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی ملوث ہے، ان کی وہاں پہ حکومت ہے، اور آپ کو بتایا بھی گئے تھے کہ اس جگہ پہ تھریٹ ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ معصوم ہیں، میں نے سوالوں میں تینوں چیزوں کے جواب دے دیے، میں نے سازش کا بھی جواب دے دیا سوالوں میں، اور آج میں سوال صرف اس لیے کیوں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا اور ان تمام سوالوں کے جوابات بھی میں خود دوں گا، لیکن میں ذرا اپنے صحافیوں کو کہتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑی سی تحقیقات کرے کہ 10 اور 22 اگست کے درمیان
कौन आला हुक्काम यूएई में मौजूद थे, जवाब मिल जाएगा। अरशद शरीफ के घर आखिरी मुलाकात के लिए, जिसके बाद अरशद शरीफ ने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए और मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। जब मोबाइल भी चेंज कर रहे थे मैं साथ बैठा हुआ था, ठीक है। मेरा इतिमाद का रिश्ता है, मेरा दोस्ती का, मेरा भाइयों से बढ़कर था मेरे लिए, ठीक है। तो उनको उस वक्त भी वो आखिरी मुलाकात थी तो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है उसकी कि कौन गया था, वो आपको पता चल जाएगा। मेरा सवाल तो ये है कि उसने मुलाकात में ये कहा था इस्लामाबाद का एक आला अफसर, इस्लामाबाद का एक आला अफसर वो गया था और उसने कहा कि जो मैं आया हूं तो आप ये समझे कि टॉप से पैगाम आया है जो मैं कह रहा हूं, और कहा कि जो आप कहोगे तो आप ये समझो कि टॉप तक ये पैगाम जाएगा। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो आपका पैगाम लेके आए थे या वो झूठ बोल रहे हैं? अगर झूठ बोल रहे तो उसके ऊपर भी कोई एक्शन ले ले, लेकिन वो घर गया था, इसका भी तमाम इत्तलात है। मैंने तो 2 सवाल अरशद की भाई के हवाले से पूछे हैं। मैंने जो खान साहब के हवाले से एक बैरूनी मुल्क शहरी की गिरफ्तारी का सवाल पूछा, साथ में मैंने सवाल पूछा हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से भरा गया था, किस तरह गलत फ्यूल डाला गया, मतलब गलत फ्यूल क्या होता है? आपने कभी सुने? आप जा रहे हो, आपसे तो गाड़ी में गलत फ्यूल नहीं डलवाया जा सकता, तो आप हेलीकॉप्टर में कैसे गलत फ्यूल जो है वो डाल सकते हैं? ठीक है, इसी तरह हुआ। तो फिर तीसरा मैंने ये सवाल पूछा कि जिस तरह अरशद के केस में मीडिया को इंस्ट्रक्शन आधे घंटे में मिले, इसी तरह मीडिया नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन आपने बहुत गलती कर बैठे हो, आप रेड लाइन क्रॉस कर चुके हो। कौम में गुस्सा है, अवाम में गुस्सा है, ये गुस्सा नफरतों में बदल रहा है। नफरतें पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, इससे मुल्क का नुकसान होगा। मैं तो खैर खा बन के आपसे बात कर रहा हूं यार। ये बताए रिजीम चेंज होने से पहले जिस तरह आपने कहा कि 4 अफसरान जो थे आला मुकाम वो एक कमरे में है और खान साहब के साजिश, वो तो खान साहब ने वीडियो बनाई इसके ऊपर, वीडियो वो अभी रिलीज तो मैं आपको इतना पागल लगता हूं कि मैं अभी बता दूंगा। हाँ आप ये बताइएगा ना जी मेरी बात। हाँ, रिजीम चेंज होने से पहले यही 4 साहिबान जो है ना पहले भी आप लोगों कौन 4 साहिबान थे, आपको कैसे पता? आप कह रहे हैं नहीं, कौन से थे? आप कह रहे हो कि रिजीम पहले से? हाँ, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं उन साहिबान से कह रहा हूँ जो एक कमरे में आए थे और एक कमरे में मुलाकात हुई खान साहब के साथ। वो पहले भी मुलाकात करते रहे खान साहब। आपको किसने, मैंने ये कब कहा है कि खान साहब के साथ खान साहब को कत्ल करने की साजिश खान साहब से मुलाकात में होती है? कमरे में आए थे जी, आपने खुद कहा है। मैंने कहा कि कमरे में 30 साजिश पकड़ी गई, खान साहब ने वीडियो में कहा हुआ है। मैंने थोड़ी कहा कि खान साहब के पास आके उनको बता रहे हैं कि आपको ये बताए कि ये साहिबान जो है ना पहले भी खान साहब से मुलाकात करते रहे कि नहीं करते रहे। दूसरा ये कि पहले आप लोग इन्हीं साहिबान की वाह वाह करते थे, अब इन्हीं साहिबान की वो तो मैंने ये नहीं आपको नाम दिए हैं। मुझे नाम दीजिए। नेक्स्ट चार बंदे हैं कमरे में बैठे हैं, साजिश कर रहे हैं, ये किस तरह को पता है? बात सुने, अपनी बात से किस तरह की आप किसने बताया? हटे ना मुराद साहब, जी अपने बात से हटे ना सीनियर साहब आपने जब कह दिया कि भाई तीन है या 4 एक कमरे में है और खान साहब की कत्ल की साजिश की है उसने, तो वही साहिबान जो है ना पहले भी खान साहब से मुलाकात करते रहे। अच्छा, बिल्कुल, हाँ। उसमें आप भी मौजूद होंगे क्योंकि आप फेडरल, आई डोंट नो, क्योंकि खान साहब ने कहा है आप फेडरल मिनिस्टर रहे, उसके साथ ही रहे। और मुझे भी पता है, इतना पता है मुझे कि कब से आप खान साहब के साथ हैं। आपको शायद मेरा पता नहीं होगा। जी मैं नहीं, आप खैर उस वक्त बहुत ज्यादा यहाँ पे आप तो खैर फेडरल मिनिस्ट्रीज की कर ली है। तो भाईजान मेरा सवाल ये जी। है कि उस वक्त आप लोग उन साहिबान, उन अस्करी हुकाम की आप वाह वाह करते थे। अब जो है ना आप लोग कह रहे हैं कि भाई वो जो है ना वो साजिश करते हैं, ये खान साहब कत्ल की साजिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप लोग जा रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल अरशद शरीफ साहब के हवाले से है। आप कह रहे हैं कि भाई अरशद शरीफ बिल्कुल हमारे भाइयों जैसा था, मेरा डीएन रह चुका है, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। आपका करीबी बहुत ज्यादा करीब होगा, शायद इससे पहले मुझसे पहले शायद आपके साथ उसके रवायत होंगे। जब उसका कत्ल के मुतालिक आपको सारी इंफॉर्मेशन थी और उसके बड़े अच्छे GHQ में उसके बड़े अच्छे रवाबित थे, ये नहीं कि उसके कोई रवाबित नहीं थे, उसके साथ अफसरान के साथ वो मिलता था, आप लोगों के दौरे हुकूमत में नहीं मिलता था वो।
اس کے باوجود انہوں نے آپ لوگوں نے ان کو پہلے سے انفارم کیوں نہیں کیا تھا اور ان کے لیے ایسی بندوبست کیوں نہیں کر سکے آپ لوگ؟ کیونکہ آپ لوگوں کے تو زیادہ کسی بھی فارن کنٹری کے لیے آپ لوگ اس کے لیے کر سکتے ہیں، مگر آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جی اور آپ نے پھر اس کو یہاں سے پشاور سے آپ نے بھجوایا اپنی گاڑی، اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی صحافی کو آپ لوگوں نے اتنا پروٹوکول کے ٹی کے، اگر میں دیکھا جائے تو کے ٹی کے کسی رپورٹر کو رحیم اللہ یوسفزئی صاحب تک اللہ ان کو بخشے کسی نے اتنی ان کو وہ نہیں دیا ہے کہ بھائی پروٹوکول کے ساتھ اس کو کہیں دوسرے ضلع یا صوبے سے جو ہے نا وہ بھجوایا، میں نے آج تک نہیں دیکھا جی اپنی 35-40 سال میں نے نہیں دیکھا کم سے یہ بتائیں کہ کیوں اتنی بول جائے؟ جی دیکھیے، ایک چیز آپ نے سوال پوچھا ارشد بھائی کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہاں پہ کیوں گئے تھے، کیسے گئے تھے، آپ کو خود ان کے سورسز کا سب سے زیادہ پتہ ہے۔ میں نے آخری ایک ملاقات کا حوالہ دیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تھریٹ لیول کیا تھا، تھریٹ پرسیپشن کیا تھا، اور ان کو کیوں ملک چھوڑنا پڑا۔ میں نے بیچ والی کوئی سوال نہیں پوچھے، اور میں نے علل اعلان کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ چیف جسٹس صاحب آپ سے بصد احترام سوال ہے کہ جب ارشد بھائی اس دنیا میں تھے تب بھی انہوں نے آپ کو ایک خط لکھا تھا، اور آج ان کی والدہ نے خط لکھا ہے، ہم ان کے مقروض ہیں۔ جب آپ کچھ کریں گے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا تو میں خود پیش ہوں گا نا، میں نے تو خود کو پیش کر دیا، اس سے تو بڑی بات پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے انصاف کا، تو میں ان کی عدالت میں خود کو پیش کر رہا ہوں، میں نے یہ بات کی ہے نا، تو میرے خیال سے آپ کے تمام سوالوں کا اس میں جواب آ گیا۔ بھائی ساروں نے سوال کرنے ہیں۔ ہاؤس کیا اتنا سیف نہیں تھا کہ آپ مجھ سے کچھ دن یہاں پہ رکھتے، اور اتنے دن آپ نے کیوں پریس کانفرنس نہیں کی جب آپ کے پاس اتنے زیادہ ثبوت موجود ہیں؟ دوسرا، آپ کے صوبائی وزراء جو ہیں وہ لانگ مارچ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحے کے ساتھ جائیں گے، ویڈیوز ان کے سامنے آ رہی ہے، اسلحے کے ساتھ آ رہی ہیں، فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، کیا یہ لانگ مارچ خونی ہونے جا رہا ہے؟ اور تمام زور جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی عوام پر ہے، کیونکہ جی اچھا، اس کا پہلے دیکھیے آپ کے پاس انصاف کا فورم کیا ہوتا ہے، ایک ہی ہے، وہ عدالت عظمیٰ ہے، عدالت ہے، وہاں پہ آپ جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو ریلیف ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو سوال پوچھا ہے مارچ کے حوالے سے، ایک رات کو اٹھ کے جو میں نے کہا کہ خان صاحب کے اوپر حملہ، ارشد شریف صاحب کی شہادت، اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے خونی مارچ کا، ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور وہ پریس کانفرنس کس کے کہنے پہ ہوئی تھی اس کا آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے کہ بیانیہ کس کا تھا، سوال کس کے ہیں، جواب کس کے ہیں، وہ تمام کو مل جائے گا۔ باقی رہی بات خیبر پختونخوا کے لوگوں کی اور عمران خان کی مارچ کی، دیکھیے وزیر داخلہ جب کرمنل بیٹھا ہو، 22 افراد کے قتل کا الزام اس کے اوپر میں نے نہیں لگایا، اس کے اپنے پارٹی کی سینئر ترین رہنما نے لگایا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں اس کے خون سے رنگے ہاتھ، میں نہیں کہہ رہا، جے ٹی رپورٹ کہہ رہی ہے، وہ ایک کرمنل ہے۔ جب وہ سر کچلنے کی بات کرے، جب وہ کہے کہ مٹا دو ان کو، ختم کر دو ان کو، لندن سے یہ پیغام آ جائے، تو ان کے ارادے آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان کے پاس تو اس وقت عوامی مقبولیت ہے، وہ تو دشمن بھی گواہی دیتا ہے کہ عمران خان مقبولیت کے آسمان پہ ہیں اس وقت، جو پاپولرٹی ہے وہ کبھی کسی لیڈر کو پاکستان میں میسر ہی نہیں آئی، نصیب ہی نہیں ہوئی۔ عمران خان کو تو اللہ نے وہی مقبولیت دی ہے، تو کیا ہمارے حق میں یہ چیز جاتی ہے؟ نہیں جاتی۔ ہم یہاں سے خیبر پختونخوا کے لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے، کیونکہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد جو ہمارا ملک جس طرف جا نکلا ہے وہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم اپنے مستقبل کے لیے نکلیں گے، اپنے لوگوں کے لیے مستقبل کے لیے نکلیں گے۔ آخری بات آپ نے کی کہ اگر ارشد بھائی کے حوالے سے آپ کی تمام چیزیں تھیں تو آپ نے پہلے کیوں بات نہیں کی؟ بھائی ارشد شریف صاحب کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کی ہم جو ہے باڈی پاکستان آ رہی ہے، پریس کانفرنس شروع ہو گئے ہیں یار، اتنا تو آپ دشمن کو بھی موقع دیتے ہو۔ انڈیا سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، سیز فائر ہوتا ہے کہ باڈیز اٹھا لو، یہاں پہ تو آپ نے اتنا صبر نہیں کیا یار۔ اس وقت میں ان کے گھر میں ان کے ماں کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے نفرت ہو رہی تھی ان سب لوگوں سے کہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں ہم کہ ان کی باڈی نہیں آئی۔ ماں سوال کیا پوچھ رہی ہے یار؟ ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو خدا کے لیے یہ ظالم اگر نہ آنے دے، آپ نے میری بیٹی کی لاش لانی ہے۔ ماں آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، گھر میں کتنے شہید ہیں ان کے؟
मुझे तो उस दिन पता चला कि सिर्फ 2-3 में तो अरशद के साथ ताल्लुक था, उनके इमीडिएट फैमिली के साथ ताल्लुक था, लेकिन उनकी फैमिली में बाहर के जितने लोग हैं उसमें भी शुहदा है, उससे भी जनाजे उठे, शहीद है, शुहदा का वारिस है। हम इतना इंतजार नहीं करते कि उसकी बॉडी पाकिस्तान पहुंचे, फिर बाकी तो छोड़े यार, उसकी लाश पड़ी हुई है, कल जनाजा है, रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बेचारा जैसे अभी अरशद फिर से उठ जाएगा और फिर इनकी जो बयान है वो तहस नहस कर देगा। इस तरह क्या अटैक हुआ? फिर उसके जनाजे के बाद 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। यार इतना जुल्म कभी किसी ने किया है? इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती है, सीज फायर कर दो, बॉडीज उठानी है, बॉडीज उठाई जाती है, फिर उसके बाद जंग होती है। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं इतना भी हूं कि मैं ये करता? मेरा अलल ऐलान है, अरशद भाई का मेरे ऊपर कर्ज है, जो मुझे थ्रेट्स थे, मेरी तमाम चीजें, मैंने आपको याद होगा स्वात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैंने एक सीनियर साथी को तमाम चीजें दी हुई है, आपको याद होगा स्वात में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तो अरशद ने या मेरी कहानी आपके सामने लानी थी या मैं अरशद भाई की कहानी सामने लेकर आऊंगा। अच्छा ये होता कि अरशद जैसा ज़हीन और काबिल पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मेरी कहानी आपके सामने पेश करता, मेरे ऊपर यह कर्ज ना छोड़ के जाता। कहने पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे? जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है, कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन, फ्यूल कहां से भरवाया गया और फ्यूल हेलीकॉप्टर्स में भरवाने का जो अथॉरिटी है वो कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये। और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से एक रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं, बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफी जानता है, लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं कि किसके कहने पे वो एक दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी? वो राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था? और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको के सामने बैठा हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं कोई पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा होता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये नहीं चलेगी। जब ये सवाल आप पूछते हैं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलाते, लेकिन एक क्रिमिनल जो फायरिंग कर चुका है उसकी वीडियोस वहां पे कौन तैयार करने वाला, इतना इन्फ्लुएंशियल कौन था और फिर उसको चलाने वाला कौन था? और इसी तरह जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो आधे घंटे में वो कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन कर करके स्टोरी बोर्ड बना के पेश कर रहा था, व्हाट्सएप कर रहा था, भेज रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था? एक सवाल मेरा यह था। और आखिर में मैं एक सवाल और पूछता हूं, फिर मैं कुछ बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं आज जिस तरह के 3 अफराद के नाम इमरान खान साहब ने दिए, एक शहबाज शरीफ, एक कातिल सानिया मॉडल टाउन के में जिसके हाथ खून से रगे हैं, राना सनाउल्लाह जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम उसके अपनी जुमात ने लगाया था वो, और तीसरा
मेजर जनरल फैसल, ये 3 फौरी तौर पे मुस्ताफी हो जाए। इनके हवाले से इमरान खान साहब का कल आपने असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मुतालबा आया। यह हमारा भी मुतालबा है, लेकिन मैं उससे पहले एक बात करना चाहता हूं कि आज जिस तरह पाकिस्तानी कौम के ज़हनों में सवाल है, अगर एक शख्स शहबाज गिल पर भी जिस किस्म का तशद्दुद हुआ, आजम स्वाति 75 साल शख्स पोतों और पूतियों और नवासों के सामने उसके साथ जो हुआ, और फिर अभी इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, अगर एक शख्स का नाम आ रहा है तो इससे किसकी साख मुतासिर हो रही है? हमारी तो आवाज बंद की जाती है। जो भी बंदा यहां पे बोलता है, कहते कि रास्ते से हटाओ। ये इंसान तो ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं कोई गाजर मूली है कि इसको मार दो, उसको मार दो, उसको मार दो, इसको मार दो। कोई अपनी अमन की बात करे, एक गेम एक्सपोज कर दे, मार दो। कोई अरशद शरीफ शहीद के हवाले से बात करे, कहते कि मार दो। कोई इमरान खान के कत्ल के हवाले से सवाल उठाए, कहते कि मार दो। कितनों को मारोगे? 22 करोड़ का मुल्क है, कितनों को मारोगे? तो अगर कोई इदारे की बदनामी का सबब बन रहा है तो उसको पूरी तौर पे मुस्ताफी होना चाहिए। और मैं अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहता हूं, पाकिस्तानी कौम को कहता हूं कि कल का जो हमला था, क्योंकि जो वीडियोस तैयार करके फिर मनपसंद सहाफियों से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, किसी से उसमें गलती भी हो जाती है ट्वीट करते हुए, तो इस तरह करके ये बयानियों की जंग नहीं है कि आप बयानों से इन चीजों की तवज्जो हटा सके। कल जिस अंदाज से फायरिंग हुई, फैसल जावेद को जो गोली लगी, चट्टा को जो लगी, जो खान साहब के साथ इर्द गिर्द थे, खान साहब को कत्ल करने की पूरी कोशिश की गई, अल्लाह ने बचा लिया। कल तो इन्होंने ये सोचा था कि 4-5 दिन पाकिस्तानी कौम शोर मचाएगी और फिर उसके बाद जो है वो हालात नॉर्मल हो जाएंगे। इस तरह नहीं है। इस वक्त फेडरेशन की वो मुत्तहिद करने की एक जुमात है, वो तहरीक इंसाफ है। अगर हर सूबे में कोई पार्टी मौजूद है, वो तहरीक इंसाफ है। अगर पुख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में कोई जुमात मौजूद है तो वो तहरीक इंसाफ है। 4 सूबों में जिसकी हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ है। तो अगर आप उनके लीडर को रास्ते से हटाओगे तो आप तो फेडरेशन के दुश्मन हो, आप तो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, हमने पहले आगाह किया था, इमरान खान हमारी रेड लाइन है और आप वो क्रॉस कर चुके हो। इस वक्त जो कारकुनान के जज्बात है, आप देखिए कि पिशावर मोटरवे बंद कर दिया, एंडस हाईवे बंद कर दिया, पिंडी में फैजाबाद, आईजीपी रोड, ये सारे बंद हो गए। तो ये किस तरह मुल्क को लेके जाना चाहते हैं? आसान सा कि 24 घंटे के अंदर आप इन अशखास की जिनका नाम लिया गया जो इस हमले में मुलविस है, इनको फिलफोर मुस्ताफी होना चाहिए। एहतिजाज हमारा जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक इन लोगों को ओहदों से नहीं हटाया जाता। आखिर में मैं इजाजत चाहते हुए आखिर में दो बातें कर सवाल ले रहा हूं, सवाल सबसे लूंगा। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि जो 4-5 सवाल मैंने पूछे इमरान खान साहब के हवाले से, उसके जवाबात आने चाहिए। हमारे पास जवाबात भी है। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे, सवाल भी बहुत है, शवाहिद भी बहुत है, दस्तावेज भी बहुत है। और अरशद शरीफ का कमाल देखिए कि वो जब जिंदा थे, शहीद तो वैसे भी जिंदा होते हैं, तो वो हर बात सबूत के साथ करते थे और किसी ने कभी उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं गया, जितने दस्तावेजात वो पेश करते थे। लेकिन जाते जात भी वो तमाम दस्तावेज सामने रख चुके हैं, जैसे उसको सारी चीजों का पता था। वो नाम भी दे के जा चुके हैं, तो मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं कि और खान साहब की अगर तंबीह ना होती तो शायद मैं बहुत कुछ कह देता। लेकिन खान साहब इंतशार से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और ये हमारा मुल्क है। मैं सबको ये बताता चलूं कि बस करो यार, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने कर देते हैं जो कि गद्दारी के और बगावत के फतवे हमारे ऊपर सादिर करते हैं। यार इस मुल्क के लिए हमारे इलाकों के 50 लाख लोग बेघर हुए थे। मेरे भाई और मेरी वालदा को भी गोली लगी थी पाकिस्तान के अमन की खातिर। हमारे पुख्तूनख्वा में किसी से भी पूछे, उन्होंने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के अमन की खातिर। खुदा के लिए यार ये गद्दारी और बगावत के फतवे अपने पास रखे, ये चूरन मत भेजे।
और वो लोग आप हमारे सामने कर देते हो जिनका सबको पता है। तो एक चीज है कि आज मैंने तमाम चीजें इसलिए बताई कि मैंने 3 जगहों पे ये तमाम अरशद भाई की तमाम डिटेल्स जो वो मेरे हवाले अमानत दे गए हैं और मकरूज कर गए हैं वो मेरे पास है। चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है कि इसके ऊपर वो उनकी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक तहकीकात का आगाज़ करे और इंशाअल्लाह मैं उसमें खुद पेश हूँगा। और जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से जो कत्ल की साजिश इनकी हुई, जो हेलीकॉप्टर में फ्यूल, फिर एक बैरूनी मुल्क के शख्स को गिरफ्तार किया गया बंद कमरे में, जो 4 अफराद ने कत्ल की साजिश की, और इसके साथ साथ मैंने जो मीडिया को किस तरह एक क्रिमिनल की वीडियोस तैयार कर करके चलाने की कोशिश की गई, नैरेटिव बना दिया गया। अगर इसके हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब कुछ करते हैं तो मैं बसत एहतराम हाजिर भी हूँगा और जवाब भी दूंगा, क्योंकि हाईएस्ट फोरम वही है और इंसाफ की तवक्को उनसे की जाती है। और रही बात 3 मुतालबात जो इमरान खान साहब ने पेश किए हैं, हमारे कारकुनान, पाकिस्तान की अवाम तब तक अपना पुरअमन एहतिजाज जारी रखेंगे। याद रखिएगा, इमरान खान वो लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई, जो आलम इस्लाम के तर्जुमान बने, जिन्होंने हमारा बयानिया दुनिया तक पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब मजदूर किसान पिसी हुई तबके की नुमाइंदगी की। और इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीद है जो अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। आप इमरान खान को रस्ते से हटा नहीं सकते। मेरे पाकिस्तानियों, रेड लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं। रेड लाइन क्रॉस करने से हमने वार्न किया था और अब वक्त आ गया है कि हम खड़े हो जाए और हम अज़म के साथ खड़े हो जाएंगे। और इन सवालों के जवाब, और अगर ये लोग मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर उसके बाद हम मजीद हक़ाइक़ के साथ इंशाअल्लाह मैं आपके पास आऊँगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, ज़्यादा कुछ बोलना था, लेकिन जो खान साहब की हिदायत है इंतशार से मना कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम इंतशार नहीं चाहते, इसलिए मैं जितना महदूद इसको कर सकता था मैंने किया। मुराद साहब, गद्दारी का चूरन आपने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा। ये जो मंसूबा है, ये मंसूबा पहला नहीं, इससे पहले भी मंसूबे बनाए गए हैं। आज से कुछ महीने कबल आप वफाकी वज़ीर थे, इस तरह के वाक़यात क़बाइली अज़ला में हुए थे जो अभी सवात में हो रहे हैं। उस पर मोहसिन दावड़, अली वज़ीर बात करते थे, आप उसको खुद गद्दार कहते थे। तो क्या अभी वो गद्दार हैं या नहीं है आपकी नज़र में, या आप खुद गद्दार हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि अभी तो वही वाक़यात हो रहे हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं। अब और जिन इदारों के वो नाम लेते थे, आप उसके सर पे खड़े होकर झगड़े करते थे असेंबली में। आज किसके खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं? देखिए, 2 फ़र्क है। और एक 18 सेकंड का क्लिप वो चला रहे हैं और आप उसी का हवाला दे रहे हैं। 2 मिनट का क्लिप उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी थी। हमारे इलाकों में 20 साल से खैबर पख्तूनख्वा में जंग जारी थी। पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे आपको पता है कि खैबर बाजार में एक दिन में 100 से ज़्यादा हमने लाशें उठाई थी। याद होगा आप सबको। हमने हर जुम्मे की नमाज के वक्त सब अपने बच्चों के लिए दुआ गो होते थे कि पता नहीं मस्जिद से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप सब इस बात के गवाह हैं। 20 साल बाद क्या 2018 से 22 तक 21 तक हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अमन था कि नहीं था? क्या स्वाद जो 2013 से पहले था और आज का स्वाद, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। स्वाद में जो मोटरवेज बने, स्वाद में जो टूरिज्म का फरोग मिला, स्वाद में जो यूनिवर्सिटीज का कायम हुआ, तो क्या स्वाद दहशतगर्दी के बाद टेररिज्म से टूरिज्म पे जाने लगा कि नहीं जाने लगा? मैं उस पर पूरी बात सुना करिए जी। मैं भाई, आपने सवाल पूछा, मेरी बात सुना करिए। मैं उनको मिसाल देता था कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बंदूक उठाए अपनी रियासत के खिलाफ, या मेरे रास्ते पे चल के अपने वजीरिस्तान को स्वाद जैसा बना दे। तो जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा, मैंने फैसला किया कि मैं खुद तमाम चीजों का मुकाबला करूंगा, लेकिन अपने लोगों के लिए साया बन के, सर सोरे भाई जोड़ेगा, साया बन के। मैंने वही किया कि अपने लोगों को अमन की तरफ लेके गया, खुशहाली की तरफ लेके गया, तरक्की की तरफ लेके गया। और यही मेरा मुतालबा था कि जब हो चुका तो उसके बाद अगर मैं वहां पे कर रहा हूं, इनके मेडिकल स्टूडेंट्स के मसाइल थे, इनके बाजार मीरान शाह का मसला था, वो तमाम मसाइल मैंने खुद हल किए और लोग मेरे पास आए। तो यही मेरा मुतालबा था कि यार वो मिसाल आपके सामने है, वही मॉडल आप ले जाए वजीरिस्तान में इंप्लीमेंट कर दे, ताकि वजीरिस्तान के लोग भी अमन और खुशहाली देख सके, बजाय इसके कि आप लोगों को ही आगे कर दे। तो लोगों को आगे करने के मैं न कल हक में था, न आज मैं हक में हूं। और अभी भी आपने देखा कि पिछले 1 महीने में जितने प्रोटेस्ट हमने किए, उसको हमने सियासी फोरम पे इस्तेमाल नहीं किया। अमन का सफेद झंडा उठा के तमाम को दावत दी, सब खड़े हो गए और एक ही आवाज थी, अमन, खुशहाली, तरक्की। उसमें किसी के हक और किसी की मुखालिफत में नारे नहीं थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की है उस टॉपिक पे अगर हम रहे तो
लेकिन वो भी ये कह रहा था कि उसको दुबई से किसने निकाला, किसने उसको फोन किया, किसने वो किया, जो चीज मैंने जवाब दे दिया। एक मिनट जी। जो वो कह रहा था वही आप कह रहे हैं। अरशद शरीफ भी यहीं से पेशावर से चला गया, किसने रुखसत किया? फिर जो है ना इमरान खान की हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग, हेलीकॉप्टर भी आप लोगों का अपना ही था, फ्यूल कहाँ से भरा जाता है? तो जी। फ्यूल जो है जहाँ से भी वो किया था कि मैं जो है ना एक जगह से फ्यूल, सवाल पूछिए, अब मैं जवाब देता हूँ। जी, यही सवाल कर रहा हूँ ना कि फ्यूल जब वो कर रहा था, हेलीकॉप्टर आपका अपना था, इमरान खान पे हमला होता है, आप लोग खुद कहते हैं कि हमने बाहर कहा था कि वजीराबाद में हमला होगा, कातिलाना हमला होगा। आप लोगों को पता था पंजाब में हुकूमत आपका है, तो ये सारी चीजें तो आपके बिल्कुल बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छे सवाल। सवाल किया गया था कि दुबई से किसने निकाला था। मैंने आपको जवाब दे दिया कि 10 से 22 तारीख के दरमियान कौन आला हुकाम मौजूद थे जो इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि ये हुकूमत को प्रेशर दे सके। अब आपने हर चीज़ मेरी मुंह से सुननी है। मुराद को ये आगे करना है, अमन चाहिए, मुराद आगे हो जाए, वो भुगते। अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा लड़ना है, मुराद शहीद आगे हो जाए। यहाँ पे फला कातिलों को पकड़ना है, मुराद शहीद आगे हो जाए। मैं तो आगे हूँ, लेकिन मैंने कमीशन पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है। कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन, फ्यूल कहां से भरवाया गया? और फ्यूल हेलीकॉप्टर्स में भरवाने का जो अथॉरिटी है वो कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये। और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से एक रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है, तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं। बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफी जानता है। लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं कि किसके कहने पे वो एक दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी? वो राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था? और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको के सामने बैठा हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं कोई पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा होता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये नहीं चलेगी। जब ये सवाल आप पूछते हैं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलाते। लेकिन एक क्रिमिनल जो फायरिंग कर चुका है, उसकी वीडियोस वहां पे कौन तैयार करने वाला, इतना इन्फ्लुएंशियल कौन था, और फिर उसको चलाने वाला कौन था? और इसी तरह जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो आधे घंटे में वो कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन कर करके स्टोरी बोर्ड बना के पेश कर रहा था, व्हाट्सएप कर रहा था, भेज रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था? एक सवाल मेरा यह था। और आखिर में मैं एक सवाल और पूछता हूं, फिर मैं कुछ बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं आज जिस तरह के 3 अफराद के नाम इमरान खान साहब ने दिए, एक शहबाज शरीफ, एक कातिल सानिया मॉडल टाउन के में जिसके हाथ खून से रगे हैं, राना सनाउल्लाह जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम उसके अपनी जुमात ने लगाया था, वो, और तीसरा
मेजर जनरल फैसल, ये 3 फौरी तौर पे मुस्ताफी हो जाए। इनके हवाले से इमरान खान साहब का कल आपने असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मुतालबा आया। यह हमारा भी मुतालबा है, लेकिन मैं उससे पहले एक बात करना चाहता हूं कि आज जिस तरह पाकिस्तानी कौम के ज़हनों में सवाल है, अगर एक शख्स शहबाज गिल पर भी जिस किस्म का तशद्दुद हुआ, आजम स्वाति 75 साल शख्स पोतों और पूतियों और नवासों के सामने उसके साथ जो हुआ, और फिर अभी इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, अगर एक शख्स का नाम आ रहा है तो इससे किसकी साख मुतासिर हो रही है? हमारी तो आवाज बंद की जाती है। जो भी बंदा यहां पे बोलता है, कहते कि रास्ते से हटाओ, ये इंसान तो ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं कोई गाजर मूली है कि इसको मार दो, उसको मार दो, उसको मार दो, इसको मार दो। कोई अपनी अमन की बात करे, एक गेम एक्सपोज कर दे, मार दो। कोई अरशद शरीफ शहीद के हवाले से बात करे, कहते कि मार दो। कोई इमरान खान के कत्ल के हवाले से सवाल उठाए, कहते कि मार दो। कितनों को मारोगे? 22 करोड़ का मुल्क है, कितनों को मारोगे? तो अगर कोई इदारे की बदनामी का सबब बन रहा है तो उसको पूरी तौर पे मुस्ताफी होना चाहिए। और मैं अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहता हूं, पाकिस्तानी कौम को कहता हूं कि कल का जो हमला था, क्योंकि जो वीडियोस तैयार करके फिर मनपसंद सहाफियों से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, किसी से उसमें गलती भी हो जाती है ट्वीट करते हुए, तो इस तरह करके ये बयानियों की जंग नहीं है कि आप बयानों से इन चीजों की तवज्जो हटा सके। कल जिस अंदाज से फायरिंग हुई, फैसल जावेद को जो गोली लगी, चट्टा को जो लगी, जो खान साहब के साथ इर्द गिर्द थे, खान साहब को कत्ल करने की पूरी कोशिश की गई, अल्लाह ने बचा लिया। कल तो इन्होंने ये सोचा था कि 4-5 दिन पाकिस्तानी कौम शोर मचाएगी और फिर उसके बाद जो है वो हालात नॉर्मल हो जाएंगे। इस तरह नहीं है। इस वक्त फेडरेशन की वो मुत्तहिद करने की एक जुमात है, वो तहरीक इंसाफ है। अगर हर सूबे में कोई पार्टी मौजूद है, वो तहरीक इंसाफ है। अगर पुख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में कोई जुमात मौजूद है तो वो तहरीक इंसाफ है। 4 सूबों में जिसकी हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ है। तो अगर आप उनके लीडर को रास्ते से हटाओगे तो आप तो फेडरेशन के दुश्मन हो, आप तो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, हमने पहले आगाह किया था, इमरान खान हमारी रेड लाइन है और आप वो क्रॉस कर चुके हो। इस वक्त जो कारकुनान के जज्बात है, आप देखिए कि पेशावर मोटरवे बंद कर दिया, एंडस हाईवे बंद कर दिया, पिंडी में फैजाबाद, आईजीपी रोड, ये सारे बंद हो गए। तो ये किस तरह मुल्क को लेके जाना चाहते हैं? आसान सा कि 24 घंटे के अंदर आप इन अशखास की जिनका नाम लिया गया जो इस हमले में मुलविस है, इनको फिलफोर मुस्ताफी होना चाहिए। एहतिजाज हमारा जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक इन लोगों को ओहदों से नहीं हटाया जाता। आखिर में मैं इजाजत चाहते हुए आखिर में दो बातें कर सवाल ले रहा हूं सवाल सबसे लूंगा। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि जो 4-5 सवाल मैंने पूछे इमरान खान साहब के हवाले से, उसके जवाबात आने चाहिए। हमारे पास जवाबात भी है। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे। सवाल भी बहुत है, शवाहिद भी बहुत है, दस्तावेज भी बहुत है। और अरशद शरीफ का कमाल देखिए कि वो जब जिंदा थे, शहीद तो वैसे भी जिंदा होते हैं, तो वो हर बात सबूत के साथ करते थे और किसी ने कभी उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं गया, जितने दस्तावेजात वो पेश करते थे। लेकिन जाते जात भी वो तमाम दस्तावेज सामने रख चुके हैं, जैसे उसको सारी चीजों का पता था। वो नाम भी दे के जा चुके हैं, तो मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं कि और खान साहब की अगर तंबीह ना होती तो शायद मैं बहुत कुछ कह देता। लेकिन खान साहब इंतशार से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और ये हमारा मुल्क है। मैं सबको ये बताता चलूं कि बस करो यार, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने कर देते हैं जो कि गद्दारी के और बगावत के फतवे हमारे ऊपर सादिर करते हैं। यार इस मुल्क के लिए हमारे इलाकों के 50 लाख लोग बेघर हुए थे। मेरे भाई और मेरी वालदा को भी गोली लगी थी पाकिस्तान के अमन की खातिर। हमारे पुख्तूनख्वा में किसी से भी पूछे, उन्होंने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के अमन की खातिर। खुदा के लिए यार ये गद्दारी और बगावत के फतवे अपने पास रखे, ये चूरन मत भेजे।
और वो लोग आप हमारे सामने कर देते हो जिनका सबको पता है। तो एक चीज है कि आज मैंने तमाम चीजें इसलिए बताई कि मैंने 3 जगहों पे ये तमाम अरशद भाई की तमाम डिटेल्स जो वो मेरे हवाले अमानत दे गए हैं और मकरूज कर गए हैं वो मेरे पास है। चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है कि इसके ऊपर वो उनकी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक तहकीकात का आगाज़ करे और इंशाअल्लाह मैं उसमें खुद पेश हूँगा। और जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से जो कत्ल की साजिश इनकी हुई, जो हेलीकॉप्टर में फ्यूल, फिर एक बैरूनी मुल्क के शख्स को गिरफ्तार किया गया बंद कमरे में, जो 4 अफराद ने कत्ल की साजिश की, और इसके साथ साथ मैंने जो मीडिया को किस तरह एक क्रिमिनल की वीडियोस तैयार कर करके चलाने की कोशिश की गई, नैरेटिव बना दिया गया। अगर इसके हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब कुछ करते हैं तो मैं बसत एहतराम हाजिर भी हूँगा और जवाब भी दूंगा, क्योंकि हाईएस्ट फोरम वही है और इंसाफ की तवक्को उनसे की जाती है। और रही बात 3 मुतालबात जो इमरान खान साहब ने पेश किए हैं, हमारे कारकुनान, पाकिस्तान की अवाम तब तक अपना पुरअमन एहतिजाज जारी रखेंगे। याद रखिएगा, इमरान खान वो लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई, जो आलम इस्लाम के तर्जुमान बने, जिन्होंने हमारा बयानिया दुनिया तक पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, पिसी हुई तबकी की नुमाइंदगी की। और इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीद है जो अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। आप इमरान खान को रास्ते से हटा नहीं सकते। मेरे पाकिस्तानियों, रेड लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं। रेड लाइन क्रॉस करने से हमने वार्न किया था और अब वक्त आ गया है कि हम खड़े हो जाए और हम अज़म के साथ खड़े हो जाएंगे और इन सवालों के जवाब, और अगर ये लोग मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर उसके बाद हम मजीद हक़ाइक़ के साथ इंशाअल्लाह मैं आपके पास आऊँगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, ज़्यादा कुछ बोलना था, लेकिन जो खान साहब की हिदायत है, इंतशार से मना कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम इंतशार नहीं चाहते, इसलिए मैं जितना महदूद इसको कर सकता था मैंने किया। मुराद साहब, गद्दारी का चूरन आपने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा। ये जो मंसूबा है, ये मंसूबा पहला नहीं, इससे पहले भी मंसूबे बनाए गए हैं। आज से कुछ महीने कबल आप वफाकी वज़ीर थे, इस तरह के वाक़यात क़बाइली अज़ला में हुए थे जो अभी सवात में हो रहे हैं। उस पर वो संदावल अली वज़ीर बात करते थे, आप उसको खुद गद्दार कहते थे। तो क्या अभी वो गद्दार हैं या नहीं आपकी नज़र में, या आप खुद गद्दार हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि अभी तो वही वाक़यात हो रहे हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं। अब और जिन इदारों के वो नाम लेते थे, आप उसके सर पे खड़े होकर झगड़े करते थे असेंबली में। आज किसके खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं? देखिए, 2 फ़र्क है, और एक 18 सेकंड का क्लिप वो चला रहे हैं और आप उसी का हवाला दे रहे हैं। 2 मिनट का क्लिप उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी थी। हमारे इलाकों में 20 साल से खैबर पख्तूनख्वा में जंग जारी थी। पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे आपको पता है कि खैबर बाजार में एक दिन में 100 से ज़्यादा हमने लाशें उठाई थी, याद होगा आप सबको। हमने हर जुम्मे की नमाज के वक्त सब अपने बच्चों के लिए दुआ गो होते थे कि पता नहीं मस्जिद से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप सब इस बात के गवाह हैं। 20 साल बाद क्या 2018 से 22 तक 21 तक हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अमन था कि नहीं था? क्या स्वाद जो 2013 से पहले था और आज का स्वाद, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, स्वाद में जो मोटरवेज बने, स्वाद में जो टूरिज्म का फरोग मिला, स्वाद में जो यूनिवर्सिटीज का कयाम हुआ, तो क्या स्वाद दहशतगर्दी के बाद टेररिज्म से टूरिज्म पे जाने लगा कि नहीं जाने लगा? मैं उस पूरी बात सुना करिए जी। मैं भाई, आपने सवाल पूछा, मेरी बात सुना करिए। मैं उनको मिसाल देता था कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बंदूक उठाए अपनी रियासत के खिलाफ, या मेरे रास्ते पे चल के अपने वजीरिस्तान को स्वाद जैसा बना दे। तो जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा, मैंने फैसला किया कि मैं खुद तमाम चीजों का मुकाबला करूंगा, लेकिन अपने लोगों के लिए साया बन के, सर सोरे भाई जोड़ेगा, साया बन के। मैंने वही किया कि अपने लोगों को अमन की तरफ लेके गया, खुशहाली की तरफ लेके गया, तरक्की की तरफ लेके गया। और यही मेरा मुतालबा था कि जब हो चुका तो उसके बाद अगर मैं वहां पे कर रहा हूं, इनके मेडिकल स्टूडेंट्स के मसाइल थे, इनके बाजार मीरान शाह का मसला था, वो तमाम मसाइल मैंने खुद हल किए और लोग मेरे पास आए। तो यही मेरा मुतालबा था कि यार वो मिसाल आपके सामने है, वही मॉडल आप ले जाए वजीरिस्तान में इंप्लीमेंट कर दे, ताकि वजीरिस्तान के अमन लोग भी अमन और खुशहाली देख सके, बजाय इसके कि आप लोगों को ही आगे कर दे। तो लोगों को आगे करने के मैं न कल हक में था, न आज मैं हक में हूं। और अभी भी आपने देखा कि पिछले 1 महीने में जितने प्रोटेस्ट हमने किए, उसको हमने सियासी फोरम पे इस्तेमाल नहीं किया। अमन का सफेद झंडा उठा के तमाम को दावत दी, सब खड़े हो गए और एक ही आवाज थी, अमन, खुशहाली, तरक्की। उसमें किसी के हक और किसी की मुखालिफत में नारे नहीं थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने किए उस टॉपिक पे अगर हम रहे तो
क्योंकि वो भी ये कह रहा था कि उसको दुबई से किसने निकाला, किसने उसको फोन किया, किसने वो किया, जो चीज मैंने जवाब दे दिया एक मिनट जी। जो वो कह रहा था वही आप कह रहे हैं। अरशद शरीफ भी यही से पेशावर से चला गया, किसने रुखसत किया? फिर जो है ना इमरान खान की हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड, हेलीकॉप्टर भी आप लोगों का अपना ही था, फ्यूल कहाँ से भरा जाता है तो जी। फ्यूल जहाँ से भी वो किया था कि मैं जो है ना एक जगह से फ्यूल, सवाल पूछिए, अब मैं जवाब देता हूँ जी। यही सवाल कर रहा हूँ ना कि फ्यूल जब वो कर रहा था, हेलीकॉप्टर आपका अपना था, इमरान खान पे हमला होता है, आप लोग खुद कहते हैं कि हमने बाहर कहा था कि वजीराबाद में हमला होगा, कातिलाना हमला होगा। आप लोगों को पता था पंजाब में हुकूमत आपका है, तो ये सारी चीजें तो आपके बिल्कुल बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छे सवाल। सवाल किया गया था कि दुबई से किसने निकाला था। मैंने आपको जवाब दे दिया कि 10 से 22 तारीख के दरमियान कौन आला हुकाम मौजूद थे जो इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि ये हुकूमत को प्रेशर दे सके। अब आपने हर चीज़ मेरी मुंह से सुननी है। मुराद को ये आगे करना है, अमन चाहिए, मुराद आगे हो जाए, वो भुगते। अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा लड़ना है, मुराद शहीद आगे हो जाए। यहाँ पे फला कातिलों को पकड़ना है, मुराद शहीद आगे हो जाए। मैं तो आगे हूँ, लेकिन मैंने कमीशन पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है। कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन, फ्यूल कहां से भरवाया गया और फ्यूल हेलीकॉप्टर्स में भरवाने का जो अथॉरिटी है वो कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये। और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से एक रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है, तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं। बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफी जानता है। लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं कि किसके कहने पे वो एक दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी? वो राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था? और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको के सामने बैठा हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं कोई पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा होता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये नहीं चलेगी। जब ये सवाल आप पूछते हैं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलाते। लेकिन एक क्रिमिनल जो फायरिंग कर चुका है, उसकी वीडियोस वहां पे कौन तैयार करने वाला, इतना इन्फ्लुएंशियल कौन था, और फिर उसको चलाने वाला कौन था? और इसी तरह जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो आधे घंटे में वो कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन कर करके स्टोरी बोर्ड बना के पेश कर रहा था, व्हाट्सएप कर रहा था, भेज रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था? एक सवाल मेरा यह था। और आखिर में मैं एक सवाल और पूछता हूं, फिर मैं कुछ बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं आज जिस तरह के 3 अफराद के नाम इमरान खान साहब ने दिए, एक शहबाज शरीफ, एक कातिल सानिया मॉडल टाउन के में जिसके हाथ खून से रगे हैं, राना सनाउल्लाह जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम उसके अपनी जुमात ने लगाया था, वो, और तीसरा
मेजर जनरल फैसल, ये 3 फौरी तौर पे मुस्ताफी हो जाए। इनके हवाले से इमरान खान साहब का कल आपने असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मुतालबा आया। यह हमारा भी मुतालबा है, लेकिन मैं उससे पहले एक बात करना चाहता हूं कि आज जिस तरह पाकिस्तानी कौम के ज़हनों में सवाल है, अगर एक शख्स शहबाज गिल पर भी जिस किस्म का तशद्दुद हुआ, आजम स्वाति 75 साल शख्स पोतों और पूतियों और नवासों के सामने उसके साथ जो हुआ, और फिर अभी इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, अगर एक शख्स का नाम आ रहा है तो इससे किसकी साख मुतासिर हो रही है? हमारी तो आवाज बंद की जाती है। जो भी बंदा यहां पे बोलता है, कहता है कि रास्ते से हटाओ। ये इंसान तो ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं कोई गाजर मूली है कि इसको मार दो, उसको मार दो, उसको मार दो, इसको मार दो। कोई अपनी अमन की बात करे, एक गेम एक्सपोज कर दे, मार दो। कोई अरशद शरीफ शहीद के हवाले से बात करे, कहते कि मार दो। कोई इमरान खान के कत्ल के हवाले से सवाल उठाए, कहते कि मार दो। कितनों को मारोगे? 22 करोड़ का मुल्क है, कितनों को मारोगे? तो अगर कोई इदारे की बदनामी का सबब बन रहा है तो उसको पूरी तौर पे मुस्ताफी होना चाहिए। और मैं अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहता हूं, पाकिस्तानी कौम को कहता हूं कि कल का जो हमला था, क्योंकि जो वीडियोस तैयार करके फिर मनपसंद सहाफियों से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, किसी से उसमें गलती भी हो जाती है ट्वीट करते हुए, तो इस तरह करके ये बयानियों की जंग नहीं है कि आप बयानों से इन चीजों की तवज्जो हटा सके। कल जिस अंदाज से फायरिंग हुई, फैसल जावेद को जो गोली लगी, चट्टा को जो लगी, जो खान साहब के साथ इर्द गिर्द थे, खान साहब को कत्ल करने की पूरी कोशिश की गई, अल्लाह ने बचा लिया। कल तो इन्होंने ये सोचा था कि 4-5 दिन पाकिस्तानी कौम शोर मचाएगी और फिर उसके बाद जो है वो हालात नॉर्मल हो जाएंगे। इस तरह नहीं है। इस वक्त फेडरेशन की वो मुत्तहिद करने की एक जुमात है, वो तहरीक इंसाफ है। अगर हर सूबे में कोई पार्टी मौजूद है, वो तहरीक इंसाफ है। अगर पुख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में कोई जुमात मौजूद है तो वो तहरीक इंसाफ है। 4 सूबों में जिसकी हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ है। तो अगर आप उनके लीडर को रास्ते से हटाओगे तो आप तो फेडरेशन के दुश्मन हो, आप तो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, हमने पहले आगाह किया था, इमरान खान हमारी रेड लाइन है और आप वो क्रॉस कर चुके हो। इस वक्त जो कारकुनान के जज्बात है, आप देखिए कि पिशावर मोटरवे बंद कर दिया, एंडस हाईवे बंद कर दिया, पिंडी में फैजाबाद, आईजीपी रोड, ये सारे बंद हो गए। तो ये किस तरह मुल्क को लेके जाना चाहते हैं? आसान सा कि 24 घंटे के अंदर आप इन अशखास की जिनका नाम लिया गया जो इस हमले में मुलविस है, इनको फिलफोर मुस्ताफी होना चाहिए। एहतिजाज हमारा जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक इन लोगों को ओहदों से नहीं हटाया जाता। आखिर में मैं इजाजत चाहते हुए आखिर में दो बातें कर सवाल ले रहा हूं सवाल सबसे लूंगा। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि जो 4-5 सवाल मैंने पूछे इमरान खान साहब के हवाले से, उसके जवाबात आने चाहिए। हमारे पास जवाबात भी है। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे। सवाल भी बहुत है, शवाहिद भी बहुत है, दस्तावेज भी बहुत है। और अरशद शरीफ का कमाल देखिए कि वो जब जिंदा थे, शहीद तो वैसे भी जिंदा होते हैं, तो वो हर बात सबूत के साथ करते थे और किसी ने कभी उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं गया, जितने दस्तावेजात वो पेश करते थे। लेकिन जाते जात भी वो तमाम दस्तावेज सामने रख चुके हैं, जैसे उसको सारी चीजों का पता था। वो नाम भी दे के जा चुके हैं, तो मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं कि और खान साहब की अगर तंबीह ना होती तो शायद मैं बहुत कुछ कह देता। लेकिन खान साहब इंतशार से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और ये हमारा मुल्क है। मैं सबको ये बताता चलूं कि बस करो यार, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने कर देते हैं जो कि गद्दारी के और बगावत के फतवे हमारे ऊपर सादिर करते हैं। यार इस मुल्क के लिए हमारे इलाकों के 50 लाख लोग बेघर हुए थे। मेरे भाई और मेरी वालदा को भी गोली लगी थी पाकिस्तान के अमन की खातिर। हमारे पुख्तूनख्वा में किसी से भी पूछे, उन्होंने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के अमन की खातिर। खुदा के लिए यार ये गद्दारी और बगावत के फतवे अपने पास रखे, ये चूरन मत भेजे।
और वो लोग आप हमारे सामने कर देते हो जिनका सबको पता है। तो एक चीज है कि आज मैंने तमाम चीजें इसलिए बताई कि मैंने 3 जगहों पे ये तमाम अरशद भाई की तमाम डिटेल्स जो वो मेरे हवाले अमानत दे गए हैं और मकरूज कर गए हैं वो मेरे पास है। चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है कि इसके ऊपर वो उनकी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक तहकीकात का आगाज़ करे और इंशाअल्लाह मैं उसमें खुद पेश हूँगा। और जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से जो कत्ल की साजिश इनकी हुई, जो हेलीकॉप्टर में फ्यूल, फिर एक बैरूनी मुल्क के शख्स को गिरफ्तार किया गया बंद कमरे में, जो 4 अफराद ने कत्ल की साजिश की, और इसके साथ साथ मैंने जो मीडिया को किस तरह एक क्रिमिनल की वीडियोस तैयार कर करके चलाने की कोशिश की गई, नैरेटिव बना दिया गया। अगर इसके हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब कुछ करते हैं तो मैं बसत एहतराम हाजिर भी हूँगा और जवाब भी दूंगा, क्योंकि हाईएस्ट फोरम वही है और इंसाफ की तवक्को उनसे की जाती है। और रही बात 3 मुतालबात जो इमरान खान साहब ने पेश किए हैं, हमारे कारकुनान, पाकिस्तान की अवाम तब तक अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। याद रखिएगा, इमरान खान वो लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई, जो आलम इस्लाम के तर्जुमान बने, जिन्होंने हमारा बयानिया दुनिया तक पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब मजदूर किसान पिसी हुई तबके की नुमाइंदगी की। और इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीद है जो अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। आप इमरान खान को रस्ते से हटा नहीं सकते। मेरे पाकिस्तानियों, रेड लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं। रेड लाइन क्रॉस करने से हमने वार्न किया था और अब वक्त आ गया है कि हम खड़े हो जाए और हम अज़म के साथ खड़े हो जाएंगे और इन सवालों के जवाब, और अगर ये लोग मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर उसके बाद हम मजीद हक़ाइक़ के साथ इंशाअल्लाह मैं आपके पास आऊँगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, ज़्यादा कुछ बोलना था, लेकिन जो खान साहब की हिदायत है, इंतशार से मना कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम इंतशार नहीं चाहते, इसलिए मैं जितना महदूद इसको कर सकता था मैंने किया। मुराद साहब, गद्दारी का चूरन आपने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा। ये जो मंसूबा है, ये मंसूबा पहला नहीं, इससे पहले भी मंसूबे बनाए गए हैं। आज से कुछ महीने कबल आप वफाकी वज़ीर थे, इस तरह के वाक़यात क़बाइली अज़ला में हुए थे जो अभी सवात में हो रहे हैं। उस पर मोहसिन दावड़, अली वज़ीर बात करते थे, आप उसको खुद गद्दार कहते थे। तो क्या अभी वो गद्दार हैं या नहीं आपकी नज़र में, या आप खुद गद्दार हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि अभी तो वही वाक़यात हो रहे हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं। अब और जिन इदारों के वो नाम लेते थे, आप उसके सर पे खड़े होकर झगड़े करते थे असेंबली में। आज किसके खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं? देखिए, 2 फ़र्क है, और एक 18 सेकंड का क्लिप वो चला रहे हैं और आप उसी का हवाला दे रहे हैं। 2 मिनट का क्लिप उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी थी। हमारे इलाकों में 20 साल से खैबर पख्तूनख्वा में जंग जारी थी। पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे आपको पता है कि खैबर बाजार में एक दिन में 100 से ज़्यादा हमने लाशें उठाई थी। याद होगा आप सबको। हमने हर जुम्मे की नमाज के वक्त सब अपने बच्चों के लिए दुआ गो होते थे कि पता नहीं मस्जिद से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप सब इस बात के गवाह हैं। 20 साल बाद क्या 2018 से 22 तक 21 तक हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अमन था कि नहीं था? क्या स्वाद जो 2013 से पहले था और आज का स्वाद, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। स्वाद में जो मोटरवेज बने, स्वाद में जो टूरिज्म का फरोग मिला, स्वाद में जो यूनिवर्सिटीज का कायम हुआ, तो क्या स्वाद दहशतगर्दी के बाद टेररिज्म से टूरिज्म पे जाने लगा कि नहीं जाने लगा? मैं उस पूरी बात सुना करें जी। मैं भाई, आपने सवाल पूछा, मेरी बात सुना करें। मैं उनको मिसाल देता था कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बंदूक उठाए अपनी रियासत के खिलाफ, या मेरे रास्ते पे चल के अपने वजीरिस्तान को स्वाद जैसा बना दे। तो जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा, मैंने फैसला किया कि मैं खुद तमाम चीजों का मुकाबला करूंगा, लेकिन अपने लोगों के लिए साया बन के, सर सोरे भाई जोड़ेगा, साया बन के। मैंने वही किया कि अपने लोगों को अमन की तरफ लेके गया, खुशहाली की तरफ लेके गया, तरक्की की तरफ लेके गया। और यही मेरा मुतालबा था कि जब हो चुका तो उसके बाद अगर मैं वहां पे कर रहा हूं, इनके मेडिकल स्टूडेंट्स के मसाइल थे, इनके बाजार मीरान शाह का मसला था, वो तमाम मसाइल मैंने खुद हल किए और लोग मेरे पास आए। तो यही मेरा मुतालबा था कि यार वो मिसाल आपके सामने है, वही मॉडल आप ले जाए वजीरिस्तान में इंप्लीमेंट कर दे, ताकि वजीरिस्तान के लोग भी अमन और खुशहाली देख सके, बजाय इसके कि आप लोगों को ही आगे कर दे। तो लोगों को आगे करने के मैं न कल हक में था, न आज मैं हक में हूं। और अभी भी आपने देखा कि पिछले 1 महीने में जितने प्रोटेस्ट हमने किए, उसको हमने सियासी फोरम पे इस्तेमाल नहीं किया। अमन का सफेद झंडा उठा के तमाम को दावत दी, सब खड़े हो गए और एक ही आवाज थी, अमन, खुशहाली, तरक्की। उसमें किसी के हक और किसी की मुखालिफत में नारे नहीं थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की है उस टॉपिक पे अगर हम रहे तो जो बातें आपने
की है तो ये तो DKISPR जो बातें कर रहा था वही बातें अपनी की, क्योंकि वो भी ये कह रहा था कि उसको दुबई से किसने निकाला, किसने उसको फोन किया, किसने वो किया, जो चीज मैंने जवाब दे दिया। एक मिनट जी। जो वो कह रहा था वही आप कह रहे हैं। अरशद शरीफ भी यहीं से पेशावर से चला गया, किसने रुखसत किया? फिर जो है ना इमरान खान की हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग, हेलीकॉप्टर भी आप लोगों का अपना ही था। फ्यूल कहाँ से भरा जाता है? तो जी। फ्यूल जो है जहाँ से भी वो किया था कि मैं जो है ना एक जगह से फ्यूल, सवाल पूछिए, अब मैं जवाब देता हूँ। जी, यही सवाल कर रहा हूँ ना कि फ्यूल जब वो कर रहा था, हेलीकॉप्टर आपका अपना था, इमरान खान पे हमला होता है, आप लोग खुद कहते हैं कि हमने बाहर कहा था कि वजीराबाद में हमला होगा, कातिलाना हमला होगा। आप लोगों को पता था पंजाब में हुकूमत आपका है, तो ये सारी चीजें तो आपके बिल्कुल बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छे सवाल। सवाल किया गया था कि दुबई से किसने निकाला था। मैंने आपको जवाब दे दिया कि 10 से 22 तारीख के दरमियान कौन आला हुकाम मौजूद थे जो इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि यूएई हुकूमत को प्रेशर दे सके। अब आपने हर चीज़ मेरी ही मुंह से सुननी है। मुराद को ये आगे करना है, अमन चाहिए, मुराद आगे हो जाए, वो भुगते। अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा लड़ना है, मुराद शहीद आगे हो जाए। यहाँ पे फला कातिलों को पकड़ना है, मुराद शहीद आगे हो जाए। मैं तो आगे हूँ, लेकिन मैंने कमीशन पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है। कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन, फ्यूल कहां से भरवाया गया और फ्यूल हेलीकॉप्टर्स में भरवाने का जो अथॉरिटी है वो कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये। और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से एक रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है, तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं। बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफी जानता है। लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं कि किसके कहने पे वो एक दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी? वो राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था? और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको के सामने बैठा हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं कोई पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा होता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये नहीं चलेगी। जब ये सवाल आप पूछते हैं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलाते। लेकिन एक क्रिमिनल जो फायरिंग कर चुका है, उसकी वीडियोस वहां पे कौन तैयार करने वाला, इतना इन्फ्लुएंशियल कौन था, और फिर उसको चलाने वाला कौन था? और इसी तरह जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो आधे घंटे में वो कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन कर करके स्टोरी बोर्ड बना के पेश कर रहा था, व्हाट्सएप कर रहा था, भेज रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था? एक सवाल मेरा यह था। और आखिर में मैं एक सवाल और पूछता हूं, फिर मैं कुछ बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं आज जिस तरह के 3 अफराद के नाम इमरान खान साहब ने दिए, एक शहबाज शरीफ, एक कातिल सानिया मॉडल टाउन के में जिसके हाथ खून से रगे हैं, राना सनाउल्लाह जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम उसके अपनी जुमात ने लगाया था,
وہ اور تیسرا میجر جنرل فیصل، یہ تین فوری طور پہ مستعفی ہو جائے. ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کل آپ نے اسد عمر کی پریس کانفرنس سنی اور مطالبہ آیا. یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستانی قوم کے ذہنوں میں سوال ہے، اگر ایک شخص شہباز گل پر بھی جس قسم کا تشدد ہوا، اعظم سواتی 75 سالہ شخص پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کے سامنے اس کے ساتھ جو ہوا، اور پھر ابھی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اگر ایک شخص کا نام آ رہے تو اس سے کس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے؟ ہماری تو آواز بند کی جاتی ہے. جو بھی بندہ یہاں پہ بولتا ہے کہتا ہے کہ رستے سے ہٹاؤ. یہ انسان تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گاجر مولی ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو. کوئی اپنی امن کی بات کرے، ایک گیم ایکسپوز کر دیں، مار دو. کوئی ارشد شریف شہید کے حوالے سے بات کرے، کہتے کہ مار دو. کوئی عمران خان کے قتل کے حوالے سے سوال اٹھائے، کہتے کہ مار دو. کتنوں کو مارو گے؟ 22 کروڑ کا ملک ہے، کتنوں کو مارو گے؟ تو اگر کوئی ادارے کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس کو پوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے. اور میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں، پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ کل کا جو حملہ تھا، کیونکہ جو ویڈیوز تیار کر کے پھر من پسند صحافیوں سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، کسی سے اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے ٹویٹ کرتے ہوئے، تو اس طرح کر کے یہ بیانیوں کی جنگ نہیں ہے کہ آپ بیانیوں سے ان چیزوں کی توجہ ہٹا سکے. کل جس انداز سے فائرنگ ہوئی، فیصل جاوید کو جو گولی لگی، چٹا کو جو لگی، جو خان صاحب کے ساتھ ارد گرد تھے، خان صاحب کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اللہ نے بچا لیا. کل تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ 4-5 دن پاکستانی قوم شور مچائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حالات نارمل ہو جائیں گے. اس طرح نہیں ہے. اس وقت فیڈریشن کی وہ متحد کرنے کی ایک جماعت ہے، وہ تحریک انصاف ہے. اگر ہر صوبے میں کوئی پارٹی موجود ہے وہ تحریک انصاف ہے. اگر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں کوئی جماعت موجود ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. 4 صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو اگر آپ ان کے لیڈر کو رستے سے ہٹاؤ گے تو آپ تو فیڈریشن کے دشمن ہو، آپ تو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اور میں تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے پہلے آگاہ کیا تھا، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور آپ وہ کراس کر چکے ہو. اس وقت جو کارکنان کے جذبات ہے، آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے. تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا. آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں سوال سب سے ہوں گا. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے. ہمارے پاس جوابات بھی ہے. ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے. سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے. اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا، جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے. لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں، جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتہ تھا. وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں. تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا. لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے. میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں. یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر. ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے، انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر. خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے.
ये चूरन मत भेजे। और वो लोग आप हमारे सामने कर देते हो जिनका सबको पता है। तो एक चीज है कि आज मैंने तमाम चीजें इसलिए बताई कि मैंने 3 जगहों पे ये तमाम अरशद भाई की तमाम डिटेल्स जो वो मेरे हवाले अमानत दे गए हैं और मकरूज कर गए हैं वो मेरे पास है। चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है कि इसके ऊपर वो उनकी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक तहकीकात का आगाज़ करे और इंशाअल्लाह मैं उसमें खुद पेश हूँगा। और जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से जो कत्ल की साजिश इनकी हुई, जो हेलीकॉप्टर में फ्यूल, फिर एक बैरूनी मुल्क के शख्स को गिरफ्तार किया गया बंद कमरे में, जो 4 अफराद ने कत्ल की साजिश की, और इसके साथ साथ मैंने जो मीडिया को किस तरह एक क्रिमिनल की वीडियोस तैयार कर करके चलाने की कोशिश की गई, नैरेटिव बना दिया गया। अगर इसके हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब कुछ करते हैं तो मैं बसत एहतराम हाजिर भी हूँगा और जवाब भी दूंगा, क्योंकि हाईएस्ट फोरम वही है और इंसाफ की तवक्को उनसे की जाती है। और रही बात 3 मुतालबात जो इमरान खान साहब ने पेश किए हैं, हमारे कारकुनान, पाकिस्तान की अवाम तब तक अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। याद रखिएगा, इमरान खान वो लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई, जो आलम इस्लाम के तर्जुमान बने, जिन्होंने हमारा बयानिया दुनिया तक पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब मजदूर किसान पिसी हुई तबके की नुमाइंदगी की। और इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीद है जो अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। आप इमरान खान को रस्ते से हटा नहीं सकते। मेरे पाकिस्तानियों, रेड लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं। रेड लाइन क्रॉस करने से हमने वार्न किया था और अब वक्त आ गया है कि हम खड़े हो जाए और हम अज़म के साथ खड़े हो जाएंगे और इन सवालों के जवाब, और अगर ये लोग मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर उसके बाद हम मजीद हक़ाइक़ के साथ इंशाअल्लाह मैं आपके पास आऊँगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, ज़्यादा कुछ बोलना था, लेकिन जो खान साहब की हिदायत है, इंतशार से मना कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम इंतशार नहीं चाहते, इसलिए मैं जितना महदूद इसको कर सकता था मैंने किया। मुराद साहब, गद्दारी का चूरन आपने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा। ये जो मंसूबा है, ये मंसूबा पहला नहीं, इससे पहले भी मंसूबे बनाए गए हैं। आज से कुछ महीने कबल आप वफाकी वज़ीर थे, इस तरह के वाक़यात क़बाइली अज़ला में हुए थे जो अभी सवात में हो रहे हैं। उस पर मोहसिन दावड़, अली वज़ीर बात करते थे, आप उसको खुद गद्दार कहते थे। तो क्या अभी वो गद्दार हैं या नहीं आपकी नज़र में, या आप खुद गद्दार हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि अभी तो वही वाक़यात हो रहे हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं। अब और जिन इदारों के वो नाम लेते थे, आप उसके सर पे खड़े होकर झगड़े करते थे असेंबली में। आज किसके खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं? देखिए, 2 फ़र्क है, और एक 18 सेकंड का क्लिप वो चला रहे हैं और आप उसी का हवाला दे रहे हैं। 2 मिनट का क्लिप उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी थी। हमारे इलाकों में 20 साल से खैबर पख्तूनख्वा में जंग जारी थी। पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे आपको पता है कि खैबर बाजार में एक दिन में 100 से ज़्यादा हमने लाशें उठाई थी। याद होगा आप सबको। हमने हर जुम्मे की नमाज के वक्त सब अपने बच्चों के लिए दुआ गो होते थे कि पता नहीं मस्जिद से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप सब इस बात के गवाह हैं। 20 साल बाद क्या 2018 से 22 तक 21 तक हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अमन था कि नहीं था? क्या स्वाद जो 2013 से पहले था और आज का स्वाद, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। स्वाद में जो मोटरवेज बने, स्वाद में जो टूरिज्म का फरोग मिला, स्वाद में जो यूनिवर्सिटीज का कायम हुआ, तो क्या स्वाद दहशतगर्दी के बाद टेररिज्म से टूरिज्म पे जाने लगा कि नहीं जाने लगा? मैं उस पूरी बात सुना करें जी। मैं भाई, आपने सवाल पूछा, मेरी बात सुना करें। मैं उनको मिसाल देता था कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बंदूक उठाए अपनी रियासत के खिलाफ, या मेरे रास्ते पे चल के अपने वजीरिस्तान को स्वाद जैसा बना दे। तो जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा, मैंने फैसला किया कि मैं खुद तमाम चीजों का मुकाबला करूंगा, लेकिन अपने लोगों के लिए साया बन के, सर सोरे बजोड़ेगा, साया बन के। मैंने वही किया कि अपने लोगों को अमन की तरफ लेके गया, खुशहाली की तरफ लेके गया, तरक्की की तरफ लेके गया। और यही मेरा मुतालबा था कि जब हो चुका तो उसके बाद अगर मैं वहां पे कर रहा हूं, इनके मेडिकल स्टूडेंट्स के मसाइल थे, इनके बाजार मीरान शाह का मसला था, वो तमाम मसाइल मैंने खुद हल किए और लोग मेरे पास आए। तो यही मेरा मुतालबा था कि यार वो मिसाल आपके सामने है, वही मॉडल आप ले जाए वजीरिस्तान में इंप्लीमेंट कर दे, ताकि वजीरिस्तान के लोग भी अमन और खुशहाली देख सके, बजाय इसके कि आप लोगों को ही आगे कर दे। तो लोगों को आगे करने के मैं न कल हक में था, न आज मैं हक में हूं। और अभी भी आपने देखा कि पिछले 1 महीने में जितने प्रोटेस्ट हमने किए, उसको हमने सियासी फोरम पे इस्तेमाल नहीं किया। अमन का सफेद झंडा उठा के तमाम को दावत दी, सब खड़े हो गए और एक ही आवाज थी, अमन, खुशहाली, तरक्की। उसमें किसी के हक और किसी की मुखालिफत में नारे नहीं थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की है उस टॉपिक पे अगर हम रहे तो जो बातें आपने की है
ये तो DKISPR जो बातें कर रहा था वही बातें आपने की, क्योंकि वो भी ये कह रहा था कि उसको दुबई से किसने निकाला, किसने उसको फोन किया, किसने वो किया, जो चीज मैंने जवाब दे दिया। एक मिनट जी। जो वो कह रहा था वही आप कह रहे हैं। अरशद शरीफ भी यही से पेशावर से चला गया, किसने रुखसत किया? फिर जो है ना इमरान खान की हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग, हेलीकॉप्टर भी आप लोगों का अपना ही था। फ्यूल कहाँ से भरा जाता है? तो जी। फ्यूल जो है जहाँ से भी वो किया था कि मैं जो है ना एक जगह से फ्यूल, सवाल पूछिए, अब मैं जवाब देता हूँ। जी, यही सवाल कर रहा हूँ ना कि फ्यूल जब वो कर रहा था, हेलीकॉप्टर आपका अपना था, इमरान खान पे हमला होता है, आप लोग खुद कहते हैं कि हमने बाहर कहा था कि वजीराबाद में हमला होगा, कातिलाना हमला होगा। आप लोगों को पता था पंजाब में हुकूमत आपका है, तो ये सारी चीजें तो आपके बिल्कुल बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छे सवाल। सवाल किया गया था कि दुबई से किसने निकाला था। मैंने आपको जवाब दे दिया कि 10 से 22 तारीख के दरमियान कौन आला हुकाम मौजूद थे जो इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि यूएई हुकूमत को प्रेशर दे सके। अब आपने हर चीज़ मेरी ही मुंह से सुननी है। मुराद को ये आगे करना है, अमन चाहिए, मुराद आगे हो जाए, वो भुगते। अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा लड़ना है, मुराद शहीद आगे हो जाए। यहाँ पे फला कातिलों को पकड़ना है, मुराद शहीद आगे हो जाए। मैं तो आगे हूँ, लेकिन मैंने कमीशन पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है। कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन, फ्यूल कहां से भरवाया गया? और फ्यूल हेलीकॉप्टर्स में भरवाने का जो अथॉरिटी है वो कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये। और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से एक रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है, तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं। बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफी जानता है। लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं कि किसके कहने पे वो एक दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी? वो राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था? और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको के सामने बैठा हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं कोई पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा होता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये नहीं चलेगी। जब ये सवाल आप पूछते हैं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलाते। लेकिन एक क्रिमिनल जो फायरिंग कर चुका है, उसकी वीडियोस वहां पे कौन तैयार करने वाला, इतना इन्फ्लुएंशियल कौन था, और फिर उसको चलाने वाला कौन था? और इसी तरह जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो आधे घंटे में वो कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन कर करके स्टोरी बोर्ड बना के पेश कर रहा था, व्हाट्सएप कर रहा था, भेज रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था? एक सवाल मेरा यह था। और आखिर में मैं एक सवाल और पूछता हूं, फिर मैं कुछ बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं आज जिस तरह के 3 अफराद के नाम इमरान खान साहब ने दिए, एक शहबाज शरीफ, एक कातिल सानिया मॉडल टाउन के में जिसके हाथ खून से रगे हैं, राना सनाउल्लाह जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम उसके अपनी जुमात ने लगाया था,
वो और तीसरा मेजर जनरल फैसल, ये 3 फौरी तौर पे मुस्ताफी हो जाए। इनके हवाले से इमरान खान साहब का कल आपने असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मुतालबा आया। यह हमारा भी मुतालबा है, लेकिन मैं उससे पहले एक बात करना चाहता हूं कि आज जिस तरह पाकिस्तानी कौम के ज़हनों में सवाल है, अगर एक शख्स शहबाज गिल पर भी जिस किस्म का तशद्दुद हुआ, आजम स्वाति 75 साल शख्स पोतों और पूतियों और नवासों के सामने उसके साथ जो हुआ, और फिर अभी इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, अगर एक शख्स का नाम आ रहे तो इससे किसकी साख मुतासिर हो रही है? हमारी तो आवाज बंद की जाती है। जो भी बंदा यहां पे बोलता है, कहते कि रास्ते से हटाओ। ये इंसान तो ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं कोई गाजर मूली है कि इसको मार दो, उसको मार दो, उसको मार दो, इसको मार दो। कोई अपनी अमन की बात करे, एक गेम एक्सपोज कर दे, मार दो। कोई अरशद शरीफ शहीद के हवाले से बात करे, कहते कि मार दो। कोई इमरान खान के कत्ल के हवाले से सवाल उठाए, कहते कि मार दो। कितनों को मारोगे? 22 करोड़ का मुल्क है, कितनों को मारोगे? तो अगर कोई इदारे की बदनामी का सबब बन रहा है तो उसको पूरी तौर पे मुस्ताफी होना चाहिए। और मैं अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहता हूं, पाकिस्तानी कौम को कहता हूं कि कल का जो हमला था, क्योंकि जो वीडियोस तैयार करके फिर मनपसंद सहाफियों से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, किसी से उसमें गलती भी हो जाती है ट्वीट करते हुए, तो इस तरह करके ये बयानियों की जंग नहीं है कि आप बयानों से इन चीजों की तवज्जो हटा सके। कल जिस अंदाज से फायरिंग हुई, फैसल जावेद को जो गोली लगी, चट्टा को जो लगी, जो खान साहब के साथ इर्द गिर्द थे, खान साहब को कत्ल करने की पूरी कोशिश की गई, अल्लाह ने बचा लिया। कल तो इन्होंने ये सोचा था कि 4-5 दिन पाकिस्तानी कौम शोर मचाएगी और फिर उसके बाद जो है वो हालात नॉर्मल हो जाएंगे। इस तरह नहीं है। इस वक्त फेडरेशन की वो मुत्तहिद करने की एक जुमात है, वो तहरीक इंसाफ है। अगर हर सूबे में कोई पार्टी मौजूद है, वो तहरीक इंसाफ है। अगर पुख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में कोई जुमात मौजूद है तो वो तहरीक इंसाफ है। 4 सूबों में जिसकी हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ है। तो अगर आप उनके लीडर को रास्ते से हटाओगे तो आप तो फेडरेशन के दुश्मन हो, आप तो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, हमने पहले आगाह किया था, इमरान खान हमारी रेड लाइन है और आप वो क्रॉस कर चुके हो। इस वक्त जो कारकुनान के जज्बात है, आप देखिए कि पिशावर मोटरवे बंद कर दिया, एंडस हाईवे बंद कर दिया, पिंडी में फैजाबाद, आईजीपी रोड, ये सारे बंद हो गए। तो ये किस तरह मुल्क को लेके जाना चाहते हैं? आसान सा कि 24 घंटे के अंदर आप इन अशखास की जिनका नाम लिया गया जो इस हमले में मुलविस है, इनको फिलफोर मुस्ताफी होना चाहिए। एहतिजाज हमारा जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक इन लोगों को ओहदों से नहीं हटाया जाता। आखिर में मैं इजाजत चाहते हुए आखिर में दो बातें कर सवाल ले रहा हूं सवाल सबसे लूंगा। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि जो 4-5 सवाल मैंने पूछे इमरान खान साहब के हवाले से, उसके जवाबात आने चाहिए। हमारे पास जवाबात भी है। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे। सवाल भी बहुत है, शवाहिद भी बहुत है, दस्तावेज भी बहुत है। और अरशद शरीफ का कमाल देखिए कि वो जब जिंदा थे, शहीद तो वैसे भी जिंदा होते हैं, तो वो हर बात सबूत के साथ करते थे और किसी ने कभी उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं गया, जितने दस्तावेजात वो पेश करते थे। लेकिन जाते जात भी वो तमाम दस्तावेज सामने रख चुके हैं, जैसे उसको सारी चीजों का पता था। वो नाम भी दे के जा चुके हैं, तो मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं कि और खान साहब की अगर तंबीह ना होती तो शायद मैं बहुत कुछ कह देता। लेकिन खान साहब इंतशार से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और ये हमारा मुल्क है। मैं सबको ये बताता चलूं कि बस करो यार, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने कर देते हैं जो कि गद्दारी के और बगावत के फतवे हमारे ऊपर सादिर करते हैं। यार इस मुल्क के लिए हमारे इलाकों के 50 लाख लोग बेघर हुए थे। मेरे भाई और मेरी वालदा को भी गोली लगी थी पाकिस्तान के अमन की खातिर। हमारे पुख्तूनख्वा में किसी से भी पूछे, उन्होंने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के अमन की खातिर। खुदा के लिए यार ये गद्दारी और बगावत के फतवे अपने पास रखे।
ये चूरन मत भेजे। और वो लोग आप हमारे सामने कर देते हो जिनका सबको पता है। तो एक चीज है कि आज मैंने तमाम चीजें इसलिए बताई कि मैंने 3 जगहों पे ये तमाम अरशद भाई की तमाम डिटेल्स जो वो मेरे हवाले अमानत दे गए हैं और मकरूज कर गए हैं वो मेरे पास है। चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है कि इसके ऊपर वो उनकी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक तहकीकात का आगाज़ करे और इंशाअल्लाह मैं उसमें खुद पेश हूँगा। और जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से जो कत्ल की साजिश इनकी हुई, जो हेलीकॉप्टर में फ्यूल, फिर एक बैरूनी मुल्क के शख्स को गिरफ्तार किया गया बंद कमरे में, जो 4 अफराद ने कत्ल की साजिश की, और इसके साथ साथ मैंने जो मीडिया को किस तरह एक क्रिमिनल की वीडियोस तैयार कर करके चलाने की कोशिश की गई, नैरेटिव बना दिया गया। अगर इसके हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब कुछ करते हैं तो मैं बसत एहतराम हाजिर भी हूँगा और जवाब भी दूंगा, क्योंकि हाईएस्ट फोरम वही है और इंसाफ की तवक्को उनसे की जाती है। और रही बात 3 मुतालबात जो इमरान खान साहब ने पेश किए हैं, हमारे कारकुनान, पाकिस्तान की अवाम तब तक अपना पुरअमन एहतिजाज जारी रखेंगे। याद रखिएगा, इमरान खान वो लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई, जो आलम इस्लाम के तर्जुमान बने, जिन्होंने हमारा बयानिया दुनिया तक पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब मजदूर किसान पिसी हुई तबके की नुमाइंदगी की। और इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीद है जो अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। आप इमरान खान को रस्ते से हटा नहीं सकते। मेरे पाकिस्तानियों, रेड लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं। रेड लाइन क्रॉस करने से हमने वार्न किया था और अब वक्त आ गया है कि हम खड़े हो जाए और हम अज़म के साथ खड़े हो जाएंगे। और इन सवालों के जवाब, और अगर ये लोग मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर उसके बाद हम मजीद हक़ाइक़ के साथ इंशाअल्लाह मैं आपके पास आऊँगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, ज़्यादा कुछ बोलना था, लेकिन जो खान साहब की हिदायत है, इंतशार से मना कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम इंतशार नहीं चाहते, इसलिए मैं जितना महदूद इसको कर सकता था मैंने किया। मुराद साहब, गद्दारी का चूरन आपने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा। ये जो मंसूबा है, ये मंसूबा पहला नहीं, इससे पहले भी मंसूबे बनाए गए हैं। आज से कुछ महीने कबल आप वफाकी वज़ीर थे, इस तरह के वाक़यात क़बाइली अज़ला में हुए थे जो अभी सवात में हो रहे हैं। उस पर मोहसिन दावड़, अली वज़ीर बात करते थे, आप उसको खुद गद्दार कहते थे। तो क्या अभी वो गद्दार हैं या नहीं आपकी नज़र में, या आप खुद गद्दार हो गए कि नहीं हो गए? तो क्या अभी तो वही वाक़यात हो रहे हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं। अब और जिन इदारों के वो नाम लेते थे, आप उसके सर पे खड़े होकर झगड़े करते थे असेंबली में। आज किसके खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं? देखिए, 2 फ़र्क है। और एक 18 सेकंड का क्लिप वो चला रहे हैं और आप उसी का हवाला दे रहे हैं। 2 मिनट का क्लिप उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी थी। हमारे इलाकों में 20 साल से खैबर पख्तूनख्वा में जंग जारी थी। पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे आपको पता है कि खैबर बाजार में एक दिन में 100 से ज़्यादा हमने लाशें उठाई थी। याद होगा आप सबको। हमने हर जुम्मे की नमाज के वक्त सब अपने बच्चों के लिए दुआ गो होते थे कि पता नहीं मस्जिद से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप सब इस बात के गवाह हैं। 20 साल बाद क्या 2018 से 22 तक 21 तक हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अमन था कि नहीं था? क्या स्वात जो 2013 से पहले था और आज का स्वात, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। स्वात में जो मोटरवेज बने, स्वात में जो टूरिज्म का फरोग मिला, स्वात में जो यूनिवर्सिटीज का कायम हुआ, तो क्या स्वात दहशतगर्दी के बाद टेररिज्म से टूरिज्म पे जाने लगा कि नहीं जाने लगा? मैं उस पूरी बात सुना करी जी। मैं भाई, आपने सवाल पूछा, मेरी बात सुना करिए। मैं उनको मिसाल देता था कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बंदूक उठाए अपनी रियासत के खिलाफ, या मेरे रास्ते पे चल के अपने वजीरिस्तान को स्वात जैसा बना दे। तो जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा, मैंने फैसला किया कि मैं खुद तमाम चीजों का मुकाबला करूंगा, लेकिन अपने लोगों के लिए साया बन के, सर सोरे भाई जोड़ेगा, साया बन के। मैंने वही किया कि अपने लोगों को अमन की तरफ लेके गया, खुशहाली की तरफ लेके गया, तरक्की की तरफ लेके गया। और यही मेरा मुतालबा था कि जब हो चुका तो उसके बाद अगर मैं वहां पे कर रहा हूं, इनके मेडिकल स्टूडेंट्स के मसाइल थे, इनके बाजार मीरान शाह का मसला था, वो तमाम मसाइल मैंने खुद हल किए और लोग मेरे पास आए। तो यही मेरा मुतालबा था कि यार वो मिसाल आपके सामने है, वही मॉडल आप ले जाए वजीरिस्तान में इंप्लीमेंट कर दे, ताकि वजीरिस्तान के लोग भी अमन और खुशहाली देख सके, बजाय इसके कि आप लोगों को ही आगे कर दे। तो लोगों को आगे करने के मैं न कल हक में था, न आज मैं हक में हूं। और अभी भी आपने देखा कि पिछले 1 महीने में जितने प्रोटेस्ट हमने किए, उसको हमने सियासी फोरम पे इस्तेमाल नहीं किया। अमन का सफेद झंडा उठा के तमाम को दावत दी, सब खड़े हो गए और एक ही आवाज थी, अमन, खुशहाली, तरक्की। उसमें किसी के हक और किसी की मुखालिफत में नारे नहीं थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की है उस टॉपिक पे अगर हम रहे तो जो बातें आपने की है, तो ये
तो डीके यार जो बातें कर रहा था वही बातें अपनी की, क्योंकि वो भी ये कह रहा था कि उसको दुबई से किसने निकाला, किसने उसको फोन किया, किसने वो किया, जो चीज मैंने जवाब दे दिया। एक मिनट जी। जो वो कह रहा था वही आप कह रहे हैं। अरशद शरीफ भी यहीं से पेशावर से चला गया, किसने रुखसत किया? फिर जो है ना इमरान खान की हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड, हेलीकॉप्टर भी आप लोगों का अपना ही था, फ्यूल कहाँ से भरा जाता है? तो जी। फ्यूल जहाँ से भी वो किया था कि मैं जो है ना एक जगह से फ्यूल, सवाल पूछिए, अब मैं जवाब देता हूँ। जी, यही सवाल कर रहा हूँ ना कि फ्यूल जब वो कर रहा था, हेलीकॉप्टर आपका अपना था, इमरान खान पे हमला होता है, आप लोग खुद कहते हैं कि हमने बाहर कहा था कि वजीराबाद में हमला होगा, कातिलाना हमला होगा। आप लोगों को पता था पंजाब में हुकूमत आपका है, तो ये सारी चीजें तो आपके बिल्कुल बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छे सवाल। सवाल किया गया था कि दुबई से किसने निकाला था। मैंने आपको जवाब दे दिया कि 10 से 22 तारीख के दरमियान कौन आला